তো দিব বিচাৰিছোঁ এটা শোকাবহ খবৰ। মাত্ৰ ২৭ বছৰ বয়সতে দেশৰ হকে যুঁজি প্ৰাণ আহুতি দিলে মুস্তাক আহমেদে। মুস্তাক আহমেদ সেনাৰ সৈতে কৰ্মৰত পৰ্টাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছিল আৰু নিযুক্তি লাভ কৰিয়েই মাত্ৰ ২৭ বছৰ বয়সতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ সৈতে যুঁজ দি প্ৰাণ আহুতি দিলে আৰু তাৰ পাছতেই মুস্তাকৰ ঘৰত এক প্ৰকাৰ শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এটা শোকাবহ খবৰ। এই মুহূৰ্তত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ সেনাৰ সৈতে কৰ্মৰত পৰ্টাৰ মুস্তাক আহমেদ। শ্বহীদ হৈছে মুস্তাক আহমেদ। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লাত সেনাৰ বাহনত হোৱা আক্ৰমণত শ্বহীদ হ'ল মুস্তাক আহমেদ। শ্বহীদ মুস্তাক আহমেদৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। এটা শোকাবহ খবৰ। দেশ মাতৃৰ হকে যুঁজ দি মাত্ৰ ২৭ বছৰ বয়সতে দেশৰ হকে যুঁজ দি প্ৰাণ গ'ল মুস্তাকৰ। মুস্তাকৰ মৃত্যুৰ পাছতে নৌচেৰা অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেনাৰ বাহনত হোৱা আক্ৰমণত মুস্তাকৰ লগতে শ্বহীদ হৈছে ২ ভাৰতীয় জোৱান। ভাৰতীয় সেনাৰ সৈতে পৰ্টাৰৰ কামত নিয়োজিত আছিল মুস্তাক আহমেদ আৰু মুস্তাক আহমেদে কৰ্মত যোগদান কৰাৰ কেইদিনমান পাছতে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে। দৰিদ্ৰ পিতৃ মাতৃক সহায়ৰ বাবে সেনাত অসামৰিক পৰ্টাৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিল মুস্তাকে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ সেনাৰ সৈতে কৰ্মৰত পৰ্টাৰ মুস্তাক আহমেদ। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লাত সেনাৰ বাহনত হোৱা অতৰ্কিত আক্ৰমণত মুস্তাক আহমেদৰ মৃত্যু হৈছে। শ্বহীদ মুস্তাক আহমেদৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে, আমি পোনে পোনে দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ হ'ল সেনাৰ সৈতে কৰ্মৰত পৰ্টাৰ মুস্তাক আহমেদ। মাত্ৰ ২৭ বছৰ বয়সতে দেশ মাতৃৰ হৈ কাম কৰা, দেশ মাতৃৰ হৈ যুঁজ দিয়া মুস্তাক আহমেদৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু মুস্তাকৰ মৃত্যুৰ পাছতে মুস্তাকৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। শ্বহীদ মুস্তাক আহমেদৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। দেশ মাতৃৰ হকে প্ৰাণ আহুতি দিলে মুস্তাক আহমেদে। আৰু মুস্তাকৰ বাসগৃহৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মুস্তাকৰ ঘৰত। মুস্তাকৰ মৃত্যুৰ পাছতে নৌচেৰা অঞ্চলত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাম। সমান্তৰালভাৱে মন্তব্য কিছু আহিছে। দৃশ্যাংশৰ সমান্তৰালভাৱে মন্তব্যত শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। देखिए, पहले तो मैं बहुत अफसोस से इसको ताबीर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नौजवान है ये बेरोज़गारी की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मेरे पास कई एक बार आया कि मेरी कहीं सिफारिश लगवा दो, कहीं मैं पोर्टर ही जाऊँगा। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे आपकी सिफारिश मैं लगवा सकता हूँ। लेकिन फिर जब इसके फॉर्म निकले तो उसमें इसने फॉर्म भरा, मैंने ही इसका फॉर्म ड्राफ्ट किया हुआ है। तो उसके बाद इसने फॉर्म भरा और कल रात को जब ये खबर हमने सुनी कि एक गरीब मुश्ताक अहमद चौधरी जो कि होंडी नौशहरा का रहने वाला है, इसकी मौत वाक़ा हो गई है, ये अफसोसनाक एक बात है। क्योंकि इसके घर में इसका वालिद है जो कि कैंसर पेशेंट है, इसकी माँ बुज़ुर्ग है और इसको 3 साल का बच्चा है। कहाँ जाएगा वो 3 साल का बच्चा इस स्टेज पे? और इसकी जो बीवी है वो भी बेचारी छोटी है। घर में कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके जो फादर हैं उसको माहाना लगभग 10-12 हज़ार रुपया खर्चा आता है उसकी दवाई पे या बाकी सब चीज़ों पे। आपने देखा होगा वो इस टाइम बिस्तरे में बैठा हुआ है, सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे ये क्या हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो लिहाजा मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अब तो हद हो गई। वही जानता है जिसके घर से उसका बेटा निकलता है, जो घर वीरान हो जाते हैं,
वही इस चीज की पेन समझ सकता है। तो इस वक्त इसकी हालत क्या है, घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं हुकूमत को भी इसके साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि जनाब इंसाफ की जरूरत है। इसका घर इस वक्त उजड़ गया है, घर में कोई सहारा बाकी नहीं रहा है। इसके घर के बारे में, इसके बाप के बारे में थोड़ा सा ख्याल रखें, जो कि एक कैंसर पेशेंट पिछले 2 साल से है। कल रात 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जहां पे उसको ब्लड चढ़ाया गया। तो मेहरबानी करके इंसाफ करने की जरूरत है, और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही सानिया है। ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए थे जो हर रोज हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में आपने देखा कि कितने वाक़ात हमारे कश्मीर में, जो कश्मीर में हो गए। मैं जावेद अहमद चौधरी हूँ और ये मेरा चचेरा भाई है मुश्ताक अहमद चौधरी सलाम मोहम्मद याकूब चौधरी। एक बहुत ही गरीब तबके से ये वाबस्ता है और इस फार्म के लिए तकरीबन 1 साल का इंतज़ार करते हैं ये लोग, फिर ये फार्म निकलती है। कोई परमिट नौकरी नहीं होती है, लेकिन 6 महीने घर चलाने के लिए थोड़ा सा इनकम सोर्सेस बन जाता है इनका। और ये कल शाम को जब ये दुखद खबर हमने देखी कि हमारे गांव का मेरा चचेरा भाई मुश्ताक अहमद इसकी डेथ हो गई है, तो कल शाम से ही हम यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक हम इसी इंतज़ार में हैं। अभी तक इंतज़ार था कि शायद ज़िंदा ना हो, अब पूरी कंफर्मेशन मिल गई है कि उसकी डेथ हो गई है। इसका बाप जो है वो सीए पेशेंट है, दिन में उसको 2,000 का या एक महीने में 15-20 हज़ार का उस पर खर्चा आता है। कल शाम को वो बारामूला से आया, अस्पताल से खून ब्लड उसका जो है वो कम होता जा रहा है, ब्लड भरवाने के लिए उसको भेजा गया था। और जब वो घर पहुंचा तो घर में पहुंचते ही ये दुखद खबर आई कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है। तो बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ों पर